whatever the class I have taken, I could not post it now these days. I could not post it on my YouTube channel. Today I will try my best if I get time. Uh, then sharing with you whiteboard. And now today we are going to take what today we are going to take that is what that is a there is a word that is a tragic hero. Already I have gone, but this particular word I want to write it here. What do you mean by tragic hero? Tragic, tragic hero. Remember that when we talk about tragic hero, this concept of tragic hero, it was given by whom? Concept of tragic hero. It was given by uh, Aristotle. Aristotle ने इस concept को दिया हुआ था. और when we talk about when we see when we go with Aristotle's concept of tragic hero, we come to know कि उन्होंने कहा था कि जो एक बहुत important point है कि जो हमारा tragic hero होना चाहिए, that should be what? That should be the mingling of good and bad elements. The mingling of MINGLING, the mingling of good and bad elements. जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, दैट ट्रेजिक हीरो व्हाट? दैट ट्रेजिक हीरो द मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स. एक तो उनका एक कॉन्सेप्ट था. दूसरा चीज उनका एक कहना था कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, हाउ हाउ इट शुड बी, आर ट्रेजिक हीरो शुड बी लाइक हाउ इट शुड बी एक तरह से आप कहा जाए कि नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड. NEITHER, नीदर एब्सोल्युटली गुड, neither absolutely good nor absolutely bad. Nor absolutely bad. Now the third point, a tragic hero, a tragic hero must be a human. A tragic hero must be a human, not angel, not angel or Satan. So this is another important point which you have to go. What did I tell you? I just told you कि ट्रेजिक हीरो को उन्होंने कहा कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो होगा वह मिंगलिंग ऑफ गुड और बैड एलिमेंट्स होगा. और जो मिंगलिंग ऑफ गुड और बैड एलिमेंट्स है वो कौन है? केवल और केवल ये इंसान होता है. द मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, जिसे हम इंसान कहते हैं, वह जो है फरिश्ता नहीं हो सकता, ना तो ही वह सेटन हो सकता है, ना तो वह बहुत अच्छा होता है, ना वह बुरा होता है, बल्कि अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है. तो ट्रेजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब अरिस्टोटल ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि ट्रेजिक हीरो या हीरो ऑफ ट्रेजेडी शुड बी नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड, बट द मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स. अगर वह एब्सोल्युटली गुड हो जाएगा तो वह एंजिल हो जाएगा. और जो दर्शक है वो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह हमारे जीवन की कहानी, यह हमारे जीवन का हिस्सा है. तो ट्रेजिक हीरो नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड, ना तो वह गुड एब्सोल्युटली होना चाहिए, ना ही एब्सोल्युटली बैड होना चाहिए, बल्कि वह मिंगलिंग ऑफ गुड और बैड एलिमेंट्स होना चाहिए. सच अ थिंग वी फाइंड. नाउ द थर्ड पॉइंट, आर ट्रेजिक हीरो मस्ट बी अ ह्यूमन. हमारा जो ट्रेजिक हीरो है उसको एक ह्यूमन होना चाहिए, या उनका एक चीज है जो ह्यूमन होगा वही जो है मिंगलिंग ऑफ गुड और बैड एलिमेंट्स होगा. ना कि हमारा ट्रेजिक हीरो एंजिल होना चाहिए या सेटन होना चाहिए. तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि what do you mean by tragic hero? This is the tragic hero. That is what we, when we talk about tragic hero, all these things we find. This is the concept of the tragic hero given by whom? Given by Aristotle. Aristotle ने ये point tragic hero को लेकर के दिया हुआ है. I think कि now you all are getting my voice and you all are in position to understand. If you have any query, you can ask.
regarding this point? Meaning of meaning meaning of Satan means shaitan, means bad element, God का opposite Satan. Vice is echoing. Meaning of Satan means, madam, it's what? It's it means opposite of God. शैतान जिसको हम कहते हैं, आप इस जिसको आप डेमन कह सकते हैं, जिसको आप जो है डेमन के अलावा आप कह सकते हैं राक्षस, evil path, evil path, evil path. Yeah. Now the next point which I have to take, that is what, that is the uh, hymarxia. Hymarxia. This is what hymarxia. It refers what? It refers tragic flaw. In English इसको अगर हम कहते हैं कि tragic flaw, or the weak point, or the weak points of a character, of a character which becomes the cause of his downfall, which becomes the cause of his downfall, his or her कोई भी चीज. So you will come to know कि hymarxia, इसका एक शाब्दिक अर्थ, इफ इट इज अ ग्रीक वर्ड hymarxia, इसका शाब्दिक अर्थ ट्रेजिक फ्लॉ या आर द वीक पॉइंट्स ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का वीक पॉइंट जो उसके पतन का कारण बनता है. यू मे टेक द एग्जांपल, इफ यू टेक मैकबेथ. मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ या जो hymarxia है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ यू कैन से कि इविल एम्बिशन. व्हेन यू टॉक अबाउट हैमलेट, तो हैमलेट का जो है वो आपका उसका प्रोकास्टिनेशन, सच अ थिंग वी फाइंड. एंड किंग लियर का क्रीडुलस होना, और ओथेलो में जेलस नेचर को हम देखते हैं. तो इस तरह से जेलसी को, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. तो कोई ना कोई एक ऐसा वीक पॉइंट होगा जिसकी वजह से वी फाइंड की व्हाट, वी फाइंड द डाउनफॉल ऑफ द कैरेक्टर में. दिस इज द पॉइंट. तो ट्रेजिक हैमर्सिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ. ट्रेजिक का मतलब दुखान, फ्लॉ का मतलब कमजोरी, एक ऐसा कमजोरी या एक ऐसा वीक पॉइंट जिसकी वजह से हीरो का या किसी भी कैरेक्टर का डाउनफॉल हो. दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ, आर द वीक पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टर which become the cause of his downfall. If you want to write example, Kiretia, evil ambition of Macbeth, evil ambition of Macbeth, and procrastination or delay in action of Hamlet, of Hamlet. Procrastination or delay in action of Hamlet. This is the which we get. That is what, that is the tragic flaw.
Now the next point which I have to take, that is the Villanelli. Villanelli. When you take Villanelli, Villanelli is nothing. It's a what? It's a 19-line lyric poem. A 19-line lyric poem. A 90 lines lyric poem, which relies RELI, which relies heavily on repetition. A 90 lines lyric poem which relies heavily on repetition. Villanelli 19 लाइन की पोयम होती है, जो कि क्या होती है, जिसपे चीजें रिपीट बहुत ज्यादा की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पोयम है द वेकिंग करके, रोहितिक्स का द वेकिंग करके। एग्जाम्पल ग्रेसिया रोहितिक्स, ROETHAE रोहितिक्स द वेकिंग। वी फाइंड विलानेली 19 लाइन पोयम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी लाइन की पोयम को कहा जाता है, 19 लाइन, और लिरिक पोयम होगा विच रिलाइज हैविली ऑन रिपीटिशन, जिसमें ज्यादातर चीजों को रिपीट किया जाता है, या कुछ लाइनें हो सकती हैं जिसमें एक रोहितिक्स पोएट है जिनका द वेटिंग करके है, थॉमस का डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इस तरह से करके बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना समझना है कि विलानेली है टाइप ऑफ लिरिक पोयम जो 90 लाइन्स पोयम, 90 लाइन्स पोयम को। इट्स नॉट अ ग्रीक वर्ड। Now the next thing which I have to take, that is what understatement. This is what understatement, and you will come to know this understatement. It is what, it is a type of figure of speech. A figure of speech, a figure of speech in which a writer or speaker says, in which a writer or speaker says less than what he or she means, less than what he or she means, or she means, what he or she means. Semicolon, the opposite of exaggeration
The opposite of exaggeration. For example, the last line of the poem Birches. ये जो बर्चेस पोयम है इसके राइटर का कौन है? दैट इज अ या 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 रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। और उसका जो लास्ट लाइन है जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, यू कैन नोट डाउन, वन कुड डू वर्स, वन कुड डू वर्स देन इज अ swinge of birches, then is a swing of birches. So this is the thing, one could do worse, कोई भी आदमी उतना ही बुरा हो सकता है या बुरा कर सकता है किया, देन इज अ स्विंगर ऑफ अ बर्चेस, जितना कि एक बर्चेस की स्विंगिंग होता है। तो स्विंगिंग बर्चेस की स्विंगिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना उसको अंडर स्टेटमेंट किया हुआ है। तो हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड माई मेरा कितने So you find these points key birches, one could do worse, and you find what you find key this particular thing we find with this particular thing we get key. Here we find key this is what understatement, and after it we go with another word that is highly significant. यूनिटीज हम लोगों ने कवर कर लिया था, यूनिटीज में किया 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 often you will find कि the particular line of the poem, a particular stanza of that poem is repeated again and again. Are you getting it? जो विलानेली जो पोयम है उसका कोई एक स्टैंजा या कोई लाइन जो है बार बार पूरी पोयम में 19 लाइन में वो बार बार रिपीट की जाएगी। 90 लाइन, वो भी लिरिक फॉर्म, लिरिक फॉर्म। Now the next thing which we have to take, that is the unity. So I have gone, but here I would like only to write here unities. It refers to what? It refers to three unities. Number one, यूनिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनिटी ऑफ टाइम, कोई भी प्ले 24 टाइम का मतलब कि 24 आवर्स, यूनिटी ऑफ टाइम। दूसरा चीज की यूनिटी ऑफ प्लेस, एंड द थर्ड इज यूनिटी ऑफ एक्शन। सो दिस यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं तो उसमें केवल ट्रेजिक एक्शन, एक ग्रीक ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट रहा है कि यूनिटी ऑफ प्लेस, कोई भी जो ड्रामा है उसका जो पूरा सेटिंग हो एक ही जगह पर हो। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब लोकेशन बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं गुजरना चाहिए।
यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब कि वो जो है एक ही एक्शन को लेके चले, दैट इज ओनली द ट्रेजिक एक्शन। अगर ट्रेजिडी लिख रहे हैं तो उसमें केवल ट्रेजिक एक्शन हो, कॉमिक एक्शन ना हो, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें बताई है। तो आई थिंक नाउ यू ऑल आर गेटिंग, एंड दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। अगर कभी भी आता है इन तीनों यूनिटी में कौन सी यूनिटी को अरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज synecdoche. Already synecdoche is nothing, it's a figure of speech in which part is substituted for whole. All these things we find, बट ड्रामा से रिलेटेड एक और चीजें हैं, स्टेजिंग, STAGING, staging, this particular thing we find, and this staging it refers to what? This staging it refers to the spectacle of play presence in performance. It refers to, it's a word, staging. It refers to staging something performance. Yeah, stage. It has been staged. It refers to it refers to performance. It refers to performance, including the position of actors, including the position of actors, including the position of actors on stage, comma, the scenic background, SCENIC, the scenic background, the scenic background, the props and costumes, the props and costumes. So these things you find, ये एक important point है जो हमें समझना चाहिए कि जिसमें ये सब चीजें देखी जाती, एंड द लाइटिंग एंड साउंड इफेक्ट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एंड द लाइटिंग एंड साउंड इफेक्ट, दी एंड द लाइटिंग एंड साउंड इफेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्टेजिंग किसको रिफर करता है, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू परफॉर्मेंस, की कोई चीज कैसे परफॉर्म की जा रही है, उसमें भी परफॉर्मेंस में क्या क्या देखा जाता है, कि जो स्टेज डायरेक्शन होता है, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ एक्टर, की पोजीशन ऑफ एक्टर क्या है, जो एक्टर्स हैं उनका रोल क्या है, द पोजीशन ऑफ एक्टर, परफॉर्मेंस में क्या क्या देखा जाता है, द पोजीशन ऑफ एक्टर्स को देखा जाता है, द पोजीशन ऑफ एक्टर्स ऑन स्टेज, स्टेज पर। उसके साथ साथ सीनिक बैकग्राउंड, की जैसा परफॉर्म किया जा रहा है क्या वही उसी हिसाब से सीन वगैरह है नहीं, अगर अगर ट्रेजिक ड्रामा है तो क्या ट्रेजिक ड्रामा के लिए ट्रेजिक सीन वहां पे दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। अब जैसे अगर थ्री विचेस का एंट्री होता है तो थ्री विचेस की एंट्री के लिए शेक्सपियर ने लंदन ब्रिज को नहीं चुना कि वो इंग्लैंड की मेन सिटी में उसको दिखा रहे हैं, उसका जो सीनिक बैकग्राउंड है वो आपका क्या है, वो जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि थंडरिंग है, लाइटिंग है, हीट है, बैरन है, ऐसा पूरा सीन। वार का एटमॉस्फेयर होगा तो बैटल फील्ड दिखाया जाएगा, स्वॉर्ड दिखाया जाएगा, सोल्जर्स दिखाए जाएंगे,
कटिंग ऑफ द थ्रोट होगा, ब्लड होगा, ये सीनिक बैकग्राउंड होता है कि जो आप दिखा रहे हैं क्या वैसी इमेज, वैसी तस्वीर, वैसे सीन्स वगैरह वहां प्रेजेंट की गई है या नहीं। तो ये सीनिक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स, उन सबके प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम, ड्रेस वगैरह कैसे, अब पता चलिए आप 14वीं शताब्दी के आदमी की बात कर रहे हैं और उसके हाथ में आपने मोबाइल फोन दिखा दिया, तो द पीपल विल नॉट बिलीव, क्योंकि 14th सेंचुरी में जो है मोबाइल नहीं चलता था। तो जो जिस सेंचुरी का होगा उसका उसी समय में, अगर मुगले आजम बनी, कब मुगले आजम बनी है आपका जाकर के 20th सेंचुरी में, 70 या 80 के दशक में, आई डोंट नो जो भी समय रहा होगा, 70 या 80 के दशक में। लेकिन पूरा का पूरा जो सेटिंग है वो 16वीं शताब्दी का भारत रहा। उस 16वीं शताब्दी के भारत का पूरा अपना सेटिंग, किला, ऑल दिस थिंग यू फाइंड। तो जब तक वो पूरा सेटिंग, वो कॉस्ट्यूम्स, वो प्रॉप, वो सब चीजें नहीं आएंगी तो पीपल विल नॉट एंजॉय, पीपल विल थिंक कि ये चीजें, अगर आप जो है अकबर के हाथ में AK-47 दिखा दें, द पीपल विल नॉट बिलीव कि ये अकबर है, जो ये तो मॉडर्न सोल्जर हमारे यहाँ, इस तरह का चीजें। एंड द लाइटिंग, उसके अलावा लाइटिंग कैसी है, साउंड इफेक्ट क्या है, ये सब चीजें मिला करके आप इसको क्या कहते हैं, स्टेजिंग कहते हैं। तो स्टेजिंग में दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। या व्हाट इज द मीन या PROP, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉप एंड कॉस्ट्यूम, तो प्रॉप एंड कॉस्ट्यूम दोनों एक ही चीज को रिफर करता है, वह जो है स्टेज डायरेक्शन का हिस्सा है। प्रॉप का मतलब एक ही, जो स्टेज डायरेक्शन है, जो स्टेज का डेकोरेशन है उसका, खास करके जो फ्रंट पार्ट है वो किस हिसाब से चल रहा है, तो वो पूरे पूरे स्टेज डायरेक्शन का जो सजावट है, दैट इज एक वर्ड की प्रॉप एंड कॉस्ट्यूम्स उसको कहते हैं, स्टेज डेकोरेशन। या नाउ we have to take one more word. I will take one or two words. Already you know, that is the next word is what? The next word is the symbol. Already you know, you have already gone. जो symbol word है, यह किसको indicate करता है कि symbol, a word or an object which refers something else, which refers to something else. So again I would like to tell you कि जो symbol है, symbol के लिए कहा जाता है कि symbol एक word है, एक वर्ड हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है जो किसको रिफर करता है, समथिंग एल्स, मतलब जिस चीज के लिए वो आया हुआ वही उतना नहीं होगा, बल्कि उसकी कोई दूसरी मीनिंग निकलेगी। सिंबल में हमेशा समथिंग एल्स, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना, विच रिफर्स टू समथिंग एल्स, जो चीज वो आ रहा है उसके अलावा भी उसका दूसरी मीनिंग निकलेगी। जो सिंबल होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है पब्लिक सिंबल जो हर आदमी जानता है, और एक होता है प्राइवेट सिंबल। पब्लिक सिंबल में आप कोई भी चीज, जैसे अगर आप एक ऐसा सिंबल जो हर आदमी जाने, वेदर दैट इज लिटरेट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड, कुछ भी होगा, इवन ब्लफ मैन, एनी कॉमन मैन, वो सब उसको जानते हैं। जैसे अगर मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे अगर रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल का मतलब कि स्टॉप, नाउ द वे इज नॉट क्लियर, तो इसको सब आदमी जानता है। तो रेड तो क्या होता है, रेड तो एक कलर है, लेकिन वहां पे वो रेड सिग्नल जो है क्या मीनिंग दे रहा है, कलर के अलावा वो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू स्टॉप हियर, नाउ द वे इज नॉट क्लियर, आफ्टर क्लियरिंग द वे नाउ यू हैव टू गो, वो उसको करता है। तो ये सिंगल, तो ये तो सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जब प्राइवेट सिंबल होता है, जो पोएट ज्यादातर अपनी पोयम में यूज करते हैं या उसको बहुत मुश्किल में समझ में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको प्राइवेट सिंबल कहते हैं। तो प्राइवेट सिंबल ज्यादातर T.S. एलियट हुए, एजरा पाउंड हुए, W.B. येट्स हुए, इवन विलियम ब्लेक ने भी यूज किया हुआ है ज्यादा, मतलब प्राइवेट सिंबल जो है ये पोएट्स वही ज्यादातर यूज करते हैं। और जो पब्लिक सिंबल है, कॉमन मैन, हर आदमी लगभग इसको यूज करते हैं, समझ में आ जाता है। तो इन दिस वे आई हैव टेकन एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हिच यू फाइंड देयर, आई विल वी हैव गॉट उसमें।
वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसको बता दिए, नथिंग मोर। अब इससे रिलेटेड और कोई चीज रह नहीं गया है। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि मैं ये चाह रहा था कि अभी तो टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा आपने कवर कर लिया, काफी सारे टर्म्स हो गए हैं लगभग, जो चीज पूछी जाती है यू ऑल हैव डन। और सिंस टुमारो वी हैव टू गो विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कुछ एज को पहले और कवर कर लिया जाए, और उसका जब एज हमारा और बढ़ जाए तब हम टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री कवर करें। या अगर आप लोग ये चाहेंगे तो जितने भी टर्म्स है वो सबसे पहले सारे टर्म्स को ही कवर किया जाएगा, एज एज यू गिव योर ओपिनियन, जैसा आप चाहें। So if you need ki we all have to go terms related to poetry, terms related to the novel and prose, then we will do that thing. Otherwise आप कहेंगे तो पहले कुछ दो तीन एजेस ले लेते, जैसे अभी एलिजाबेथन एज हुआ था, उसके आगे दो तीन एजेस ले लेते, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, लेट मी डिसाइड टुमारो, जैसा होगा हम लोग कल बात करेंगे। जी। नेक्स्ट टेस्ट का जो शेड्यूल है, एक्चुअली आई ड्यू टू lockdown and other thing, I have to leave station suddenly, and my typist, he is in Kanpur. I have to talk to that one, whether what he has. Now I will just contact him, and I will try my best to get the latest report. Then I will take. जी जी मैडम, जी सर। जी जी। हाँ हाँ। जी 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 जी। हाँ, it depends upon situation, क्योंकि जो टाइपिस्ट है हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ 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 हाँ, इससे वो है। हाँ, वी आर डूइंग एंड अगर होता है, अगर उसने कोई सेट तैयार किया होगा तो एक आध कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा होगा। या जी जी जी। मैडम जब आप ये बताइए, अगर जब आप नहीं, एक चीज देखिए, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगी, तो टॉपिक वाइज टेस्ट में आप ये समझिए कि कम से कम जो है 200 से लेके 300 टेस्ट कराने थे टॉपिक वाइज, उससे ज्यादा। और ये चीज संभव नहीं कि 200 से लेके 300 टेस्ट हो। ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट हो सकता हो 15 से 20 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 15 से 20 पे 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे, और 2000 क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टेस्ट को हम लोग कंडक्ट कराते हैं तो हफ्ते भर लग रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि हम लोग केवल ये नहीं बताते कि पहले का ए दूसरे का डी, या आपको आंसर भेज दिए आपने कर लिया चले गए। उसका बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है, इवन आपने भी हो सकता है उसका आंसर की देखा होगा। तो क्योंकि उसका जो ब्यूटी है उस टेस्ट का, उसका एक्सप्लेनेशन ही है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो फिर उस टेस्ट का मेरी नजर में कोई मायने नहीं है, वो तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चीज टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि टॉपिक की अगर आप बात करेंगे तो इतने टॉपिक हैं, और उतने टॉपिक पर क्वेश्चन बनाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, ये चीज बहुत ही मुश्किल भरा चीज होगा। वरना फॉर्मेलिटी है कि किसी का कट पेस्ट करके जो है, या हमारा जो ऑलरेडी गया हुआ है, ये कह दे कि आप लोग वही चीजें कर लीजिए, उसी में से देख लीजिए, वो टॉपिक वाइज है, दैट इज अनदर थिंग। हम जो आपका टेस्ट करा रहे हैं, वो टेस्ट इस पर करा रहे हैं कि लास्ट ईयर के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल तक, उनको मिंगल करके, और जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करके। हम अपनी क्वेश्चन ये नहीं डाल रहे हैं कि शेक्सपियर कब पैदा हुए, उनकी अम्मा का क्या नाम था, उनके अब्बा का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर आदमी कर सकता है। टेस्ट का मतलब है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसको लगे कि हाँ इसकी कोई गहराई है, या इसमें कोई दम। अदरवाइज तो कॉमन चीजें हर आदमी जान रहा है। अगर आप सोचिए शेक्सपियर पे केवल अगर आप टेस्ट कराएंगे तो कम से कम शेक्सपियर पे 10 टेस्ट होने चाहिए। उनके जितने वर्क है, उनकी जितनी कैरेक्टर्स है, जितनी उनकी लाइनें हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि टॉपिक वाइज कोई टेस्ट हो। टॉपिक वाइज
हाँ, टॉपिक वाइज मैडम नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नहीं, अभी तो मैडम आप मई में भी ना सोचिए। आज आज हालात हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो रिपोर्ट आई है, लखनऊ विश्वविद्यालय कह रहा है हम अपने सारे बच्चों को प्रमोट करेंगे। और उसने ये नहीं कहा कि मैं एग्जामिनेशन लूंगा, जबकि एग्जामिनेशन हमारे यहाँ जो डेट आई थी कि 15 मई से पहला पेपर होगा, और 15 मई से कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई गुंजाइश नहीं है। और जो उसका वेब है वो वेब थमने का नाम नहीं ले रहा, तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि ये जून में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जुलाई अगस्त कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हमें सबसे पहला चीज की अपने कोर्स को, जो नए लोग हैं उनके कोर्स को अपडेट हो, वो सारे टॉपिक से पहले वाकिफ हो जाए। और टेस्ट भी जरूरी है, लेकिन टेस्ट की स्थिति जैसा होगा वैसा बताएं। तो या देयर इज अ चांस, देयर इज